Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a chapter in class 12 and the name of this chapter is New Center of Power class. Class, first of all I would like to introduce the syllabus of this chapter. What are the content we discuss here in this chapter? देखो क्लास आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन there are some new center of powers like European Union. This is a group of 28 European countries. This is a new center of power after the end of Cold War. And ASEAN. ASEAN is the country of 10 Southeast Asian nations which was established in 1967. So we discuss here. And the next organization is the SHARC, Southeast Asian Association of Regional Corporation. SHARC country, this was established in 1985. जो साउथ एशिया के जो नेशन हैं. एंड द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स. तो क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस फोर ऑर्गेनाइजेशन इन द चैप्टर. फर्स्ट इज यूरोपियन यूनियन, द सेकेंड इज आसियान, थर्ड इज SHARC and fourth is BRICS. So class we will going to discuss these four organizations in our class. But basically class today we will going to discuss about the ASEAN. Class, first of all, in my previous class I will explain about the European Union. It was established in 1992 by a Maastricht Treaty and Maastricht Treaty के बाद ये जब डेवलप हुई. Now after today we will going to discuss about ASEAN. The name is ASEAN is Association of Southeast Asian Nation, and the short form is ASEAN. This is the name of this organization, South Association of Southeast Asian Nation, ASEAN. This ASEAN nation was established in 1967 class. And who are the founder member of this? The founder members are like Indonesia, Malaysia, Philippines, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thailand and Singapore. These are the founder members class. Indonesia, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore
and Thailand. These are the 5 founder members, and they come together by a Bangkok Declaration. They are signing the Bangkok Declaration, and ASEAN was established in 1967. And the full form of ASEAN is Association of Southeast Asian Nation class. First of all, class, we understand ki what is the need of ASEAN and how it come. Class, we know that ki the Southeast Asian region, which are just south of the China एंड इन ईस्ट इन इंडिया. तो साउथ ईस्ट हमारे एशिया के साउथ ईस्ट एरिया में है ये कंट्रीज़ हैं. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड. दीज आर द कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशियन. तो यू नो इन द सेकेंड वर्ल्ड वार या बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो यूरोप की तमाम कंट्रीज़ हैं, दे एस्टैब्लिश द कॉलोनीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया. और during the Second World War, European countries and the Japanese were have a tough competition in Southeast Asia. वे सब अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे. जापान अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहता था, एंड जो यूरोप के कंट्री हैं वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते थे. दे वांट टू इस्टेब्लिश अ डोमिनेंस इन दिस रीजन. इस एरिया में अपना डोमिनेंस बनाना चाहते थे क्लास. तो क्लास तो एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी यहाँ डिस्टर्बेंस रहा. यू नो जापान की आर्मी जो है इंडोनेशिया तक पहुँच गई. एंड नाउ सेकेंड वर्ल्ड वार में कॉलोनियल रूल भी यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ. बट जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं दे गॉट द इंडिपेंडेंस. साउथ ईस्ट एशिया के देशों को आज़ादी मिलनी शुरू हुई. एंड जो जापान का डोमिनेंस था उससे भी बाहर आए क्लास. देन आफ्टर दिस जो ये एरिया था उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई. यू नो व्हेन दिस कंट्री वाज कम आउट फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, तो उन कंट्रीज़ की भी वैसी समस्याएं थी जैसे हमारी इंडिया की. दे वांट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस एरिया. नेशनल बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी ना. अपने कंट्री का नेशनल बिल्डिंग कैसे करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेंगे, दिस वाज अ टेंशन. और जो हमारे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था, जैसे नैम को इस्टेब्लिश किया, या तीसरी दुनिया का जो कंसेप्ट था, ये सब चीज़ें जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सका. और जो साउथ ईस्ट एशिया है ड्यूरिंग द कोल्ड वार, वो USSR और USA दोनों के बीच के कंपटीशन का भी शिकार बना. एंड USSR was want to dominate in this area, and USA is also want to dominate in this area. So there is a tough competition between these two superpower in this area. But जो ये कंट्री थे आसियान के जो कंट्री थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, दे वर थिंकिंग कि हाउ विल डेवलप देयर इकोनॉमी. उन्होंने फिर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते तलाशे. और फाइनली इन कंट्रीज़ ने 1967 में आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. इट वाज मेड इन 1967 में बना. और इसके जो 5 फाउंडर मेंबर हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड बने. नाउ ASEAN was established. And the motto of the ASEAN is to
इस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना इज़ द मेन मोटो, इसका मोटो था। एंड जो ये मेंबर कंट्रीज़ हैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को खुद से डिसाइड करें कि हाउ इट मेक द पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस एरिया। तो इस तरह से आसियान आया क्लास। क्लास वी also know कि before in this area America was make alliance CENTO, Southeast Asian nation, and this organization was to provide the social security for Southeast Asian nation and counter the influence of Soviet यूनियन। सोवियत जो एसएसआर का इन्फ्लुएंस था वो साउथ ईस्ट एशिया में कम करने के लिए अमेरिका वॉज मेड द सेंटो जिसने बनाया था सीटो। अमेरिका ने साउथ ईस्ट एशिया में सीटो बनाया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एसएसआर का इन्फ्लुएंस जो है साउथ एशिया में न बन पावे। तो जो सीटो ऑर्गेनाइजेशन था जिसको साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका ने बनाया था, और यही सीटो आगे चल कर के आसियान को जो बनाने में हेल्प करा। तो यही सीटो जो है स्लोली डेवलप इन द आसियान के रूप में, कॉपरेशन के रूप में सामने आया। द मेंबर कंट्रीज वेर मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से आसियान बना क्लास, और 5 फाउंडर मेंबर थे। दे साइन द बैंकॉक डिक्लेरेशन एंड आसियान वाज फॉर्म इन 1967। बट क्लास आगे चल कर के और भी इसके मेंबर्स बने, जैसे कि क्लास ब्रुनई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओ पीडीआर, म्यांमार previously known as Burma, and Cambodia, they joined this ASEAN। और इस तरह से अब आसियान के मेंबर्स की संख्या क्लास 10 हो गई। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान टू स्टैब्लिश आसियान इज टू इकोनॉमिक ग्रोथ, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इन दिस एरिया। इस एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करने के लिए आसियान को बनाया गया। This is the primary objective through the social progress and cultural development। ठीक है, जो कल्चरल डेवलपमेंट या सोशल प्रोग्रेस के थ्रू इस एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाया जाएगा। देखो क्लास, द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ द आसियान इज टू maintain the peace and stability in this area by adopting the policy of rule of law and the United Nations Charters। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के रूल है उसको उस पे और रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे आसियान एरिया में, जो साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था क्लास। एंड देखो क्लास, दिस आसियान वाज नॉट डिजायर टू बिकम अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, लाइक यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन की तरह बहुत ही पावरफुल सुप्रा नेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं बनना चाहता था। बट जो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे, जो इनके जो तरीके थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। एंड दिस डिफरेंट वे इज़ नोन एज द आसियान वे। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इनके तौर तरीके बिल्कुल ही अलग हैं, एंड दिस इज़ नोन एज आसियान वे। इट मीन्स कि जो इनके काम करने का तरीका है वो नॉन फॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशंस एंड कोऑपरेशन, आपस में सहयोग करना, ठीक है, एंड रेस्पेक्ट द नेशनल सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर। और ये जो है आसियान के काम वर्क में सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दूसरे कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसका वो रेस्पेक्ट करते हैं
और इस तरह से आसियान काम करता है। देखो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, आसियान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होने लगी है। दुनिया की हालांकि दिस कंट्री वाज नॉट सो पावरफुल लाइक यूरोपियन यूनियन, जापान या अमेरिका, यूएसए की तरह ये बड़ी इकोनॉमी तो नहीं है, बट इनकी तुलना में ये काफ़ी छोटी इकोनॉमी है, बट इसके इकोनॉमिक ग्रो की जो रफ्तार है बहुत ही तेज़ है क्लास। एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम 2003 के बाद से दिस आसियान वाज स्टार्ट टू वर्किंग एंड फॉलोइंग द पाथ ऑफ यूरोपियन यूनियन। 2003 के बाद आसियान ने भी तय किया कि वो यूरोपियन यूनियन के रास्ते पे चलेगा। एंड दैट इज़ वाई आसियान ने अपने जो है 3 आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया क्लास, जो इसके 3 पिलर्स के रूप में है। फर्स्ट इज आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, the second is ASEAN Economic Community, and the third pillar is ASEAN socio-cultural community. These are the 3 pillars of तो क्लास फर्स्ट पिलर इज आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो देखो क्लास दिस आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो बनी उसका ये फंडा है क्लास की, जो आसियान कंट्री के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर कोई टेंशन है या कोई कन्फ्रंटेशन है तो उसको हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे कि वो आम कन्फ्रंटेशन में यानी हथियारों वाली लड़ाई में बदल जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मेंबर कंट्रीज़ ने बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट, आसियान कंट्री के जो मेंबर्स हैं इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं कि आपस में पीस, कोऑपरेशन और एक दूसरे के मामले में नॉन इंटरफेरेंस और को बढ़ावा देंगे, ठीक है। एक दूसरे के मामलों के जो एक दूसरे से जो डिफरेंसेस हैं उसके प्रति हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने आपस में बहुत सारे पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट किए हैं। इसके अलावा आसियान रीजनल फोरम इसको बनाया गया है, जो कि 1904 में बनाया गया। आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम 1994 में इस्टेब्लिश किया गया एंड is the organization that carry out the coordination of security and foreign policy, ताकि जो इस एरिया का जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है उस साउथ ईस्ट एशिया का उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, इसलिए आसियान रीजनल फोरम को इस्टेब्लिश किया गया 1994 में क्लास। देन देखो आसियान, देखो सेकंड पिलर आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन
बेस, ठीक है, विद इन द आसियान स्टेट्स। जो आसियान राज्य हैं उनमें कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन वाली व्यवस्था को बनाना, एंड टू ऐड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन। और इस रीजन में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे करना है। देखो, द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड आल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एक्सिस्टेंस ASEAN dispute settlement mechanism to resolve the economical dispute। देखो, जो इकोनॉमिकल डिस्प्यूट है उसको भी ये सॉल्व करते हैं आपस में। इसके अलावा क्लास, जो आसियान के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ताकि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट, लेबर और सर्विसेज को आसानी से अवेलेबल कराया जा सके। अब देखो, यूएस और चाइना इस फ्री ट्रेड एरिया की वजह से जो है आसियान के साथ बातचीत करने की, कोऑपरेशन करने की और डीलिंग करने की कोशिश कर रहा है क्लास। देखो, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी इज़ आल्सो ट्राइंग टू, कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, और वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रही है क्लास। देखो, आसियान की इकोनॉमी इस एरिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और उसका जो विज़न है 2020 की, डिफाइन एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी आसियान का रोल जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाया जाए। देखो, आसियान का जो विज़न 2020 है उसके अकॉर्डिंग आसियान पूरे वर्ल्ड में अपने रोल को और भी इम्पोर्टेंट बनाना चाहता है, एंड दैट इज़ वाई जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। एंड आसियान, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस एरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको ख़त्म करने में मीडिएटिंग किया है, लाइक कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट्स, ईस्ट तिमूर क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, एंड मीट एनुअली टू डिस्कस द ईस्ट एशियन कॉरपोरेशन। देखो क्लास, आसियान का जो बढ़ता हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको देख करके इंडिया और चाइना जैसे प्लेयर्स भी चाहते हैं कि अब आसियान के साथ जो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर के रूप में आसियान के साथ जुड़ा जाए। और हमारी इंडिया जो है प्रीवियसली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर आसियान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, बट आफ्टर द कोल्ड वॉर हमारा इंडिया जो है आसियान के साथ कोऑपरेट करने को लिए तैयार है। नाउ हमने 2 आसियान मेंबर सिंगापुर और थाईलैंड के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू साइन आसियान FTA। और आसियान के साथ खुद हम FTA साइन करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास। एंड नाउ इन द करेंट सिनेरियो कि हम बहुत इसके करीब पहुंच चुके हैं क्लास। एंड ASEAN is the only this region ki where all the matter of Asia was discussed here, and the security concern also discussed in the in this region about the Asia class.